Welcome to everyone. Welcome to another lecture of my YouTube channel, which is named as B. Chemistry. Myself Bishwajit Pal. The channel B. Chemistry goes to several topic-wise lecture, solve paper of some competitive exams in the area, in the subject of chemistry. As I repeatedly explain in my YouTube channel, we have topic wise lecture as well as several competitive exam solve paper. Regarding the topic wise lecture, we are covering the solid state chemistry chapter, that is a very important chapter from the physical chemistry. After completion of this physical chemistry portion, then we will go to the organic, then we will go for the inorganic, and those are the lecture which are totally related to the chapter wise and topic wise lecture. I hope those video which I am uploading in my channel are helpful, are beneficial to you. As well as we have another aspects in which we are going to have several central and state based competitive exam regarding JEE Mains, NEET, West Bengal Joint and so on. As in my YouTube channel, I have been already uploaded the JEE Mains 2nd September 2020 morning shift as well as evening shift solve paper. Now for today's lecture, we are going to have another lecture from the solid state in which we are going to discuss the very famous, the very known radius ratio rule. This radius ratio rule has a huge impact regarding the geometry, the structure of the crystalline solid. कोई भी crystalline solid का geometry, structure, उसका coordination number, ये सारे चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के लिए इन अ शॉर्टकट मेथड रेडियस रेशियो रूल को बहुत ही एक अहमियत दिया जाता है इन द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री. फॉर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव दैट पार्ट. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ बी डॉट केमिस्ट्री. अगर हेल्पफुल लगे लाइक बटन दबा दो, और इफ़ इट्स बेनिफिशियल, इफ़ इट्स हेल्पफुल टू यू, दोस्तों के साथ शेयर करो, जूनियर लोगों के साथ शेयर करो. एंड ऑब्वियसली वी हैव अ फेसबुक पेज विच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज बी डॉट केमिस्ट्री. इसका जो एड्रेस है, ये जो पीपीटी है इसके ऊपर वो एड्रेस लिखा हुआ है. मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका एड्रेस डाल दूंगा. उसमें क्लिक करके यू कैन जॉइन ओवर दैट फेसबुक पेज वेयर in the regular updates we are going to have several question papers, scientific blogs, and as well as several modern science innovations, exam updates, and obviously these video lectures in a short duration mode. वो तुम जब फेसबुक चैनल में जाओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा. आई होप वो चीज़ बहुत हेल्प करेगा टू ग्रो अप योर कॉन्सेप्ट in the area, in the subject of chemistry. So ज़्यादा समय नष्ट मत करके we will have our today's topic, that is radius ratio rule to predict the geometry, the structure in the crystalline solid of solid state chemistry. So we start our today's lecture, that is another lecture from the solid state chemistry, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं that is a famous rule about solid state chemistry which is named as radius ratio rule. This is one of the most famous rule that we have regarding the geometry, the structure of crystalline solid in the solid state chemistry, जहाँ पे if you have the value of radius ratio rule constituting the cation and the anion, जो वो जिससे वो solid state और the crystalline solid बना हुआ है, if you know the radius ratio value, you can easily understand that what kind of geometry it should have. That's why radius ratio rule is one of the most important rule in solid state chemistry, जो बहुत पहचाना जाता है to know the geometry or the structure about the basic structure, the basic geometry about the crystalline solid. Okay, तो यहाँ पे ये radius ratio rule जो है, ये radius ratio rule हम लोग करने वाले हैं. तो पहले जो चीज़ दिमाग में आता है कि सर आप बताइए व्हाट इज रेडियस रेशियो रूल. रेडियस रेशियो रूल का मतलब क्या है? रेडियस रेशियो रूल का मतलब कुछ ऐसा है कि तुम्हें कैटायन का जो रेडियस है और एनायन का जो रेडियस है वो रेडियस का रेशियो करना पड़ेगा, और रेशियो करने के बाद यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ समथिंग. पकड़ लो 0.7 एज एन एग्जाम्पल.
And from that detected value of 0.7, you can easily understand that what kind of geometry that crystalline solid has. And that is very interesting rule by which or from which you can easily understand the geometry of that certain crystalline solid. हम लोग करने वाले हैं एलएनसीएल का स्ट्रक्चर लेके, हम लोग करने वाले हैं सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर लेके, हम लोग करने वाले हैं जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर लेके, हम लोग हर एक का रेडियस रेशियो निकालेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उसका जो जो फॉर्मूला है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या है, एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर फॉर दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस रेडियस रेशियो रूल। इट्स अ प्रीटी सिंपल रूल। कुछ चीजें हैं जो ट्रिक के तरह तुम्हें याद रखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बिकॉज मान लो किसी क्रिस्टल का अगर रेडियस रेशियो वैल्यू तुम्हें दिया गया है, सो फ्रॉम दैट रेडियस रेशियो वैल्यू देयर आर सम इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू नो, एंड फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल दिया जाएगा, वो न्यूमेरिकल में वो इंफॉर्मेशन तुम्हें अप्लाई करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल फैक्ट। तो रेडियस रेशियो रूल एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में ऐसे आता है कि इन द टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन पोर्शन, जहां पे यू हैव टू अप्लाई द रेडियस रेशियो रूल बाय हैविंग दोस क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन जो रेडियस रेशियो रूल से तुम्हें मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे मैं हर बार बोलता हूं, इन माय चैनल दैट इज नेम्ड एज बी डॉट केमिस्ट्री, हम लोग हर एक चीज को डेप्थ में करने वाले हैं। और मैंने पहले भी बोला है, वी हैव अ कंप्लीट लेसन अबाउट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, जिसके अकॉर्डिंगली वी हैव 9 to 10 लेक्चर including the numerical one also, and for that you have to take part in the individual one to understand the complete package, to understand the concept, the knowledge that is pretty much required for the solid state chemistry in board as well as the competitive exams. I hope you understand. तो यहाँ पे और एक चीज हम लोग देखने वाले हैं, that is radius ratio rule. इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने बनाया था, फ्रॉम दैट वीडियो आई एक्सप्लेन दैट व्हाट इज समथिंग रिप्रेजेंटेड एज द पैकिंग एफिशिएंसी, व्हाट इज समथिंग रिप्रेजेंटेड एज द रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड ऑब्वियसली जहां पे हम लोग ने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कैलकुलेशन किया था, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बिलोंग्स टू 0.414, sorry, capital R, which is the radius of that certain atom that are constituted to that system. Okay, and we have the tetrahedral void, which is something represented as 0.225 R. These are the two things which is very important, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बोला था मैंने कि तुम्हें अभी इसका सिग्निफिकेंस उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। जब हम लोग रेडियस रेशियो रूल करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इसका सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा है। एंड दैट इज द पार्ट विच आई मेंट कि ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो वैल्यू यहाँ पे है 0.225 और 0.414, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू जो रेडियस रेशियो रूल में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वी विल हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट रेडियस रेशियो रूल। तो जैसे मैंने बोला था, इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर दे हैव अ cubic close packed arrangement, जिसके accordingly you have this kind of arrangement, or if all the identical atoms then they are close packed with each other. And when you have this kind of close packed structure, the thing that come to our mind कि जो void space के बारे में हम लोग ने बात किया था, वो void space भी occupied हो जाएगा by the cations, because we consider the structure of that crystalline solid in that close packing arrangement, in that close packing arrangement. और जब हम लोगों ने ये close packing arrangement के बारे में बोला था, जहां पे हम लोगों ने बात किया था about close packing arrangement, वहां पे हम लोगों ने बात किया था about void space, जहां पे we have the concept about void space, जहां पे हम लोगों ने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये voids के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक होगा, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर और द क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्मेट। ठीक है, वो आई बटन में उसका लिंक होगा, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना।
तो जो भी है यहां पे जो void के बारे में बात किया था, that void is the part when you consider the solid state structure in a close packing arrangement, that void should be occupied, in most of the cases that should be occupied by having metal center, जिसको तुम कैटायन भी बता सकते हो। जैसे मान लो यू हैव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन, जैसे मान लो यू हैव द क्रिस्टल ऑफ NaCl, जहां पे Cl माइनस इन दिस काइंड ऑफ Cl minus is in this kind of close pack arrangement and the Na plus is in the void space. अभी void space का जो रेडियस है वो रेडियस हम लोगों ने निकाला था and we discussed that the radius of void space is very small compared to these constituent ions. ठीक है, अभी क्वेश्चन एक दिमाग में आता है कि सर अगर रेडियस बहुत कम है तो यहां पे क्या ये आयोन्स जो हम लोग कैटायन के बारे में बात कर रहे हैं, ये आयोन्स क्या वहां पे फिट होगा? मेरा आंसर है यस। क्यों? बिकॉज cations are smaller in size, and when the cations are smaller in size compared to the anionic system, they can easily fit over the void system because they are smaller in size. अगर एनायन के बारे में बात करूं तो एनायन का साइज ज्यादा होता है तो void space में वो फिट नहीं भी हो सकता है। अभी बोलोगे सर क्या हर समय एनायन ही फिलअप होता है, मतलब कैटायन ही void space फिलअप करता है, एनायन void नहीं फिलअप करेगा? कि आप बता रहे हो कि NaCl void फिलअप कर रहा है, Cl- नहीं फिलअप करेगा? करेगा। कब करेगा? जब कैटायन का जो रेडियस है वो एनायन से ज्यादा होगा। लेकिन इन नॉर्मल केसेस कैटायन का जो रेडियस होता है वो एनायन से कम होता है, और जब कैटायन का रेडियस एनायन से कम होता है, इट्स अ वेरी simple thing that we do, that the void should be occupied by the cations, not the anions, because they are smaller in size. अगर कैटायन का अगर रेडियस ज्यादा हो तो एनायन voids फिल अप करेगा, वो बहुत ही कम देखने को लगता है। जैसे मान लो इन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, इन द स्ट्रक्चर ऑफ cesium chloride, in the structure of zinc sulfide, in every case the cation is occupied the void, और वो void का जो नेचर है वो अलग अलग होता है। जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ कुछ जगह में तुम्हें देखने को मिलेगा कि कैटायन इज ऑक्युपाइंग ऑल्टरनेट साइड्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। In some cases the cations occupied the octahedral void, in some cases the cations occupied the alternate sides of the tetrahedral voids and so on. There are some different nature because तुम्हारे पास जो void का nature है वो अलग अलग है। Okay, लेकिन cation in most of the cases that fill up in the void, और जब ये cation ये void space को fill up करेगा, जैसे मान लो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, यू हैव दिस काइंड ऑफ क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ द एनायंस, एंड बिटवीन दिस क्लोज पैक्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट अ कैटायन इज फिल्ड अप एट द वॉइड ऑफ इट। जैसे मान लो ये वाला वॉइड जिसको बोला था हम लोगों ने इन सम केसेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो जो भी है this voids is occupied by the cation supposed to be, and these are the anionic part. अभी क्वेश्चन ये आएगा कि अगर ये कंप्लीट फॉर्मेट है जहां पे ये void स्पेस में हम लोग का कैटायन बैठ रहा है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर रेडियाई, ओके, दिस इज समथिंग रिप्रेजेंट द होल क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट कौन सा वाला फॉर्मेट पे है, मतलब ये जो वॉइड है, ये वॉइड का जो दो नेचर है, एक होता है ऑक्टाहेड्रल और दूसरा होता है जो टेट्राहेड्रल। वॉइड में जो कैटायंस है कौन सा वाला पोजीशन वो ऑक्युपाई कर रहा है, जैसा वो पोजीशन ऑक्युपाई करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसका ज्योमेट्री अलग अलग होगा। मतलब अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, बिकॉज तुमको मालूम है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और टेट्राहेड्रल में 4 होता है। और यही जगह पे हम लोग का जो चीज लगेगा उसको बोला जाएगा रेडियस रेशियो रूल, जहां पे you have the ratio of the cation and the anion, and from this ratio of the cation and anion you will clear that that system should consist octahedral geometry or tetrahedral geometry, coordination number 6, coordination number 4, FCC type of system, BCC type of system और primitive unit cell क्या होने वाला है,
that can be understand from the radius ratio rule. आई होप यू अंडरस्टैंड कि रेडियस रेशियो रूल का मतलब क्या है, कि कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस निकलने के बाद, मतलब रेशियो करने के बाद, द वैल्यू विल डेजिग्नेट द क्रिस्टल एंड सॉलिड स्ट्रक्चर जियोमेट्री. और इसका ओरिजिन मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों रेशियो कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव दिस काइंड ऑफ क्लोज पैक अरेंजमेंट बाय विच एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सर्टेन क्रिस्टल एंड सॉलिड. ठीक है, तो हम लोग आते हैं at the part of radius ratio rule. Okay, so the radius ratio rule is something involved, कुछ ऐसा है, you have a cationic radii and you have an anionic radii. When you are going to ratio this radii, this is something represent a value. As I explained to you, always the cationic radii, in most of the cases, it is less than the anionic radii. In some case, it should be equal, and in some case, it should be greater than. Equal जब होता है तो उसका structure होता है BCC, ये याद रखना, जैसे cesium chloride in some cases. Okay, तो जो भी है, जब इक्वल होता है तो BCC आता है, और दिस इज द कॉमन फॉर्मेट. अगर ये हम लोग का कॉमन फॉर्मेट है तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, द वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. बट इन सम केसेस व्हेन यू हैव इक्वल, देन इट शुड बिकम दैट r प्लस बाई r माइनस इक्वल टू 1. तो एज अ समेशन हम लोग लिखेंगे द रेडियस रेशियो वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिस्क्राइब some geometries which can occupy that cubic crystal solid. Okay, that will cubic crystal and solid. तो हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले करने वाले हैं एक टेबल बनाने वाले हैं जहाँ पे we will have the value of radius ratio. हम लोग का यहाँ पे वैल्यू होगा रेडियस रेशियो का. उसके बाद हम लोग के पास जो वो होगा वॉइड्स का. उसके बाद हम लोग का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का. ओके, और उसके बाद हम लोग का जो होगा उसको बोला जाएगा एग्जाम्पल. और भी एक चीज है यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि कैटायंस ऑक्यूपाई वॉइड. ये भी एक जगह है यहाँ पे कि कैटायन कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है. जैसे मैंने बोला कि कैटायन विल ऑक्यूपाई द वॉइड एंड दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय रेडियस रेशियो रूल. ठीक है, तो क्या है रेडियस रेशियो रूल का वैल्यू. पहला जो वैल्यू है वो कुछ आता है 0.155 से 0.225. इट्स अ रेंज वैल्यू. क्या वॉइड आएगा, इसको बोला जाता है 2D प्लेन वॉइड्स. ये बहुत सिंपल है. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, और कैटायन जो ऑक्यूपाई करता है ये ऑक्यूपाई करता है 2D प्लेन वॉइड्स. क्या कैटायन विल ऑक्यूपाई 2D प्लेन वॉइड्स. यहाँ पे और एक चीजें बता दूं जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया. ये कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ साथ और एक चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जो होगा जियोमेट्री. यहाँ पे जियोमेट्री जो होगा वो होगा ट्रायंगुलर प्लानर. ये होगा इसका जियोमेट्री. इसका एग्जाम्पल होगा बोरोन ऑक्साइड B2O3. ठीक है, इसके बाद वाला जो रेंज आएगा वो आएगा 0.225 से आएगा. इट शुड बी 0.414. दिस इज द वॉइड दैट इज समथिंग रिप्रेजेंट द टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस. ये क्या आ रहा है, ये आएगा टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस. इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और जिसके अकॉर्डिंगली यू हैव द शेप ऑफ टेट्राहेड्रल, इन सम केस टेट्राहेड्रल जियोमेट्री. और इसका जो कैटायन होगा वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, इट विल ऑक्यूपाई द ऑल्टरनेट टीडी वॉइड्स. ठीक है, ऑल्टरनेट टीडी वॉइड्स को ये ऑक्यूपाई करेगा. और इसका जो एग्जाम्पल है वो है जिंक सल्फाइड, दैट इज जिंक ब्लेंड. ठीक है, ऊपर वाले को थोड़ा इरेज कर देता हूं, फिर ऊपर पोर्शन में ये चीज लिखता हूं. उसके बाद रेडियस रेशियो का वैल्यू क्या है, उसके बाद रेडियस रेशियो का रेंज है 0.414 से 0.732. वॉइड्स क्या है,
वॉइड्स है ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस, ठीक है, यह है वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कैटायन क्या करेगा, कैटायन विल ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये क्या ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एग्जांपल क्या है, सिंपल एग्जांपल जो है NaCl। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जियोमेट्री फॉलो करेगा, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री इन सम केसेस, ओके। और लास्ट जो है रेंज वो है 0.732 से 1, जिसको बोला जाता है क्यूबिक वॉइड स्पेस, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। और जो कैटायन है इट विल ऑक्यूपाई दैट क्यूबिक वॉइड स्पेस। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सीजियम क्लोराइड, ठीक है। These are the examples and these are the range of this radius ratio value, जहां पे if the value for a specific system shifts towards this range, then it should have coordination number 6. The cation should occupy the octahedral voids, and it has, in some cases the ratio should be 1:1, in some cases it should be 1:2, but it has octahedral geometry जहां पे coordination number आ रहा है 6. If you have the range of 0.732 to 1, it should be cubic void space, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 8। कैटायन क्या ऑक्यूपाई करेगा, क्यूबिक वॉइड स्पेस। एग्जाम्पल क्या होगा, सीजियम क्लोराइड। और यहाँ पे और एक है 0.22 to 414, जहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस है। कैटायन क्या है, 0, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, और कैटायन क्या ऑक्यूपाई करेगा, ऑल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एंड यू हैव अ स्ट्रक्चर, यू हैव एन एग्जांपल ऑफ जिंक सल्फाइड। अभी अच्छे से याद करो, इन द प्रीवियस लेक्चर, अभी वो लेक्चर अभी तक देखा नहीं है, अबाउट टू कैलकुलेट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस और द टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस, वो लेक्चर एक बार देख लेना। तो जहां पे मैंने ये चीज कैलकुलेशन किया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो वैल्यू आता है वो होता है 0.414 और टेट्राहेड्रल वॉइड का वैल्यू आता है 0.225, सही था। और वो वॉइड में अगर तुम कैटायन फिट करोगे तो वो तुम्हारा होल क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज यू हैव द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर। इसीलिए वो जो वैल्यू था वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज वही वैल्यू से हम लोग रेंज निकालने वाले हैं अबाउट रेडियस रेशियो रूल। जहां पे अगर टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो कैटायन, तो वो कितना होगा रेशियो, वो रेशियो होगा कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में। बिकॉज तुम मान सकते हो कि ये कितना आ रहा है, R प्लस बाई R माइनस आ रहा है 0.225, तो R प्लस का वैल्यू कितना है 0.225 इंटू आर माइनस, सही में। और 0.225 इंटू आर माइनस मतलब क्या, वही पहले वाला दिन का कैलकुलेशन जो मैंने बताया था 0.225 इंटू आर। तो मतलब कैटायन का कितना वैल्यू होना चाहिए, कितना रेडियस होना चाहिए, 0.225 इंटू आर माइनस, मतलब जो मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस निकाला था वही रेडियस होगा कैटायन का, तभी वो फिट करेगा इन दैट टेट्राहेड्रल वॉइड। द सेम केस विल बी अप्लाइड। अगर तुम यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का करोगे तो 0 प्लस आर प्लस कितना आएगा 0.414 इंटू आर माइनस। वही चीज हम लोगों ने प्रूफ किया था कि 0.414 इंटू कैपिटल आर, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो स्पेस है वही स्पेस होना पड़ेगा कैटायन का, वही रेडियस होना पड़ेगा कैटायन का, तभी वो जगह में फिट करेगा। एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ 3D क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए मैंने बोला था ये दोनों नंबर्स का बहुत सिग्निफिकेंस है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग रेडियस रेशियो रूल में इसको अप्लाई करने वाले हैं। बिकॉज रेडियस रेशियो रूल इज वन ऑफ दोस रूल्स बाय विच यू कैन एक्सप्लेन द जियोमेट्री, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, द कैटायनिक अरेंजमेंट इन द सिस्टम, एंड ऑब्वियसली द फॉर्मूला, दैट इज NaCl और CaCl और ZnS। हम लोग आएंगे कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो यही चीज मैं बोलना चाह रहा था अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्पेस एंड द टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस, इन विच द कैटायन शुड हैव द वैल्यू, द रेडियस वैल्यू दैट शुड सिमिलर टू दैट सिस्टम। जो अरेंजमेंट है, वो जो अरेंजमेंट का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वो वॉइड का जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली।
अभी डायग्रामेटिकली मैं तुम्हें ये जो पूरा चार्ट है, ये चार्ट मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले एक चीज मैंने बोला था मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग एक डीपीपी शीट अपलोड करने वाले हैं इन माय फेसबुक पेज। उसके बाद मुझे लगा एक रेडियस रेशियो का एक लेक्चर दे देते हैं, बिकॉज बहुत बच्चे लोगों का रेडियस रेशियो रूल में थोड़ा कॉन्फ्यूजन है कि सर रेडियस रेशियो रूल क्या है, रेडियस रेशियो रूल से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, कौन टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ें। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसका एक लेक्चर बना देता है, वीडियो लेक्चर। डीपीपी शीट में मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसमें खाली मैंने जो पीडीएफ या कुछ भी मैं बनाता उसमें खाली मेरा कैलकुलेशन होता, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके अकॉर्डिंगली एक वीडियो बना देते हैं। तो देखो पूरा वीडियो को, अंत तक देखना पूरा वीडियो को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग एक डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे मैंने एक एनायन का एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है दिस इज समथिंग रिप्रेजेंटेड एज आवर वॉइड स्पेस, और ये वॉइड स्पेस को लेके ही हम लोग बात करने वाले हैं, बिकॉज दिस बीच वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वॉइड स्पेस जो है, ये वॉइड स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज ये वॉइड स्पेस के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे कैटायन फिट होगा, उसके अकॉर्डिंगली इसका जियोमेट्री जज होगा, मतलब रेडियस रेशियो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तुम जब यहाँ से यहाँ पे जाओगे, मैं यहाँ पे एक चीज तुम्हें डिफरेंट दिखाऊंगा। यहाँ पे जो कैटायन है वो बड़ा है, ऑब्वियसली फिट होना चाहिए। यहाँ पे जो कैटायन में डालूंगा ये थोड़ा छोटा होगा, और यहाँ पे जो कैटायन होगा वो और भी छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटायन में यहाँ पे पुट कर रहा हूं इन दैट वॉइड स्पेस, और ये कैटायन का रेडियस धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो रेडियस रेशियो का वैल्यू है, वो रेडियस रेशियो वैल्यू जहां तक तुम यहां से यहां तक जाओगे तो वैल्यू विल इंक्रीज, द वैल्यू विल इंक्रीज। यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कैटायन यहाँ पे बड़ा है, और ये अगर यहाँ पे फिट होता है, इफ इट फिट्स ओवर देयर, देन ऑब्वियसली रेडियस रेशियो वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये होल का, ये वॉइड का स्पेस ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली कैटायन का जो रेडियस है वो भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। यहां पे अगर आते हो तो इन दैट केस ये कैटायन का रेडियस थोड़ा कम है, बिकॉज ये वॉइड यहाँ पे कम है, बिकॉज रेडियस रेशियो वैल्यू इसका कम है। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम आओगे ये वॉइड और भी छोटा होगा, माने जो वॉइड है वो और भी छोटा होता जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो कैटायन का रेडियस है वो कम है, बिकॉज इसका रेडियस रेशियो वैल्यू बहुत कम है। तो हम लोग जो एंड में गए हैं, मतलब हम लोग मान लो स्टार्ट किए हैं 0.225 से, उसके बाद आए हैं 0.414 पे, उसके बाद आए हैं 0.732 पे। तो द रेडियस रेशियो वैल्यू जब यहां से यहां तक आओगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8:8, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूबिक टाइप ऑफ सिस्टम। क्यूबिक टाइप ऑफ सिस्टम मतलब कुछ ऐसा, जहां पे तुम्हारे पास यहाँ पे 8 कॉर्नर्स में 8 एटम है, और एक बीच में एक होल है, और ये बीच में जो होल है, दिस होल इज समथिंग रिप्रेजेंट द वॉइड, और ये वॉइड में जो कैटायन है वो आके फिट होगा। ओके, जो कैटायन है वो आके फिट होगा अगर उसका रेडियस मैच खाता है तो, जो भी जियोमेट्री है वो मॉलिक्यूल का। और इसमें इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा समथिंग 8:8, बिकॉज ये 8 एटम से घिरा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 8। तो इसके लिए रेंज क्या होने वाला है, दैट इज ये ऑक्यूपाई करेगा क्यूबिक वॉइड स्पेस। मैंने बोला था वहां पे क्यूबिक वॉइड स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। रेडियस रेंज क्या होने वाला है 0.732 से 1। अगर बोलोगे सर आप कैलकुलेशन करके दिखा दो, मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक फेज, यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ करो। ये बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना है, √3 है, ये पता है आई थिंक तुम लोग को। दिस इज बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल का वैल्यू कितना हो रहा होता है √3 है। अगर एज लेंथ कितना है, अगर एज लेंथ a है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कितना है देख लो अच्छी तरीके से। यहाँ पे एक एनायन है, उसके बीच में कैटायन है, फिर एक एनायन है, मतलब ये एनायन है, इस बीच में कैटायन है, फिर एनायन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास 2 एनायन का रेडियस आ रहा है और एक कैटायन का पूरा
रेडियस, मतलब पूरा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है √3a, बिकॉज तुम देखो ये बॉडी डायगोनल से कनेक्टेड है, दिस इज समथिंग कनेक्टेड बाय बॉडी डायगोनल, सही में। और अगर ये बॉडी डायगोनल से कनेक्टेड है तो इसका वैल्यू तो √3a होने वाला है, जिसके अकॉर्डिंगली ये 1 आएगा। और उसके बाद दूसरा वाला देखो, अगर दो एनॉन को देखते हो, ये वाला एनॉन पकड़ो, ये वाला एनॉन पकड़ो, ये किस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है अराउंड a, मतलब दो एनॉन जो है ये एनॉन कनेक्टेड है बाय द एज, जिसका वैल्यू है a। अभी तुम क्या करोगे, इसका रेशियो करोगे, क्या कैसे करोगे, 1/2 करो, क्या आएगा 1/2 में, 1/2 में कुछ दिखने में ऐसा लगेगा, r प्लस r माइनस बाई r माइनस इक्वल टू √3/1, जिसका वैल्यू है 1.732, जिसके अकॉर्डिंगली तुम पाओगे r प्लस बाई r माइनस इक्वल टू 0.732। मतलब यही जो वैल्यू है, यही वैल्यू के बारे में हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग, जहां पे ये रेंज कहां पे आ रहा है। अभी बोलोगे सर ये 0.414 कहां से आया, ये चीज तो मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाके एक बार देख लेना। ये दोनों का ही वैल्यू मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था। तो यहां पे रेडियस रेशियो वैल्यू जितना बढ़ेगा, ये वॉइड का स्पेस उतना बढ़ेगा, और जो उतना बड़ा कैटायन वहां पे जाके फिट होगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे वाले कोई अरेंजमेंट के बारे में, जहां पे ये जो क्यूबिक अरेंजमेंट है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो फॉर दैट क्यूबिक अरेंजमेंट द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पे जो वॉइड स्पेस होगा वो बहुत बड़ा होगा। अगर वॉइड स्पेस बहुत बड़ा है तो कैटायन भी तुम्हें बड़ा चाहिए। इसलिए कौन सा वाला एग्जांपल लिए हम लोग, सीजियम क्लोराइड, जहां पे सीजियम प्लस इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कैटायन इन पीरियोडिक टेबल। धीरे धीरे तुम इतना जहां इस तरह पाओगे, ये वॉइड स्पेस धीरे धीरे घटता जाएगा, बिकॉज रेडियस रेशियो वैल्यू कम होता जाएगा, और ये इसका होगा 0.414, पकड़ लो। जहां पे तुम्हारे पास एग्जांपल है NaCl का, बिकॉज रेडियस छोटा है इसलिए छोटा कैटायन आएगा। और उसके बाद जब तुम 0.225 में आओगे तो और भी ये चीज छोटा होता जाएगा, दैट विल बिकम ZnS, दैट इज Zn2 प्लस S2 माइनस। तो ये जो चीज है कि कौन सा वाला स्पेस, कौन सा वाला जियोमेट्री ऑक्युपाई करेगा, कौन सा वाला कैटायन, कौन सा वाला वॉइड ऑक्युपाई करेगा, ये इनबिल्ट वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ये प्रॉपर्टी है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन करना है। इसीलिए रेडियस रेशियो रूल एक शॉर्टकट रूल है, जिसके अकॉर्डिंगली तुम वॉइड स्पेस क्या है वो बता सकते हो, कैटायन कौन सा वाला पोजीशन ऑक्युपाई करेगा वो बता सकते हो, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो बता सकते हो, एवरीथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड ओवर दैट कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, जहां पे रेडियस रेशियो वैल्यू तुम्हारा बढ़ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 8:8, यहाँ पे होगा 6:6, यहाँ पे होगा 4:4। मतलब ये है टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज ऑक्टाहेड्रल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एंड दिस इज क्यूबिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जिसको अगर दिखने जाओ तो कुछ दिखने में ऐसा लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ रेडियस रेशियो रूल। पिछले वाले में जहां पे मैंने चार्ट किया था, वो वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव टू मेमोराइज दैट टेबल, यू हैव टू मेमोराइज। ठीक है, बिकॉज वो टेबल अगर तुम मेमोराइज नहीं करोगे तो हर टाइम तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये टेट्राहेड्रल ऑक्युपाई करेगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी एक एग्जाम्पल में हम लोग आएंगे जो तुम्हें ये चीज को पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, तो देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल में आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा ये 0.732 का मामला। इन दोनों का अगर समझना है तो पिछले वाला लेक्चर तुम्हें देखना पड़ेगा, अबाउट 0.414, अबाउट 0.225। ठीक है, जहां पे मैंने प्रूफ किया था कि 0.414 आता है। नाउ वी विल स्टार्ट बाय हैविंग स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन सिस्टम, जहां पे 3 सिस्टम को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। पहला वाला है NaCl, दूसरा वाला है सीजियम क्लोराइड, और तीसरा वाला है जिंक सल्फाइड, मतलब जिंक ब्लेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तीनों चीजों को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। अभी के लिए खाली
NaCl को देखते हैं, उसके बाद सीजियम क्लोराइड में हम लोग जाते हैं। तो NaCl में क्या होता है? फॉर NaCl टाइप ऑफ सिस्टम, it has a constituent ion of Na plus and Cl minus, and if you go through its radius ratio value, इसका रेडियस रेशियो वैल्यू कुछ होता है 95 पिकोमीटर जो रेडियस होता है कैटायन का, और 181 पिकोमीटर जो होता है एनायन का, एंड इफ यू गॉट इनटू अ रेशियो पार्ट इट विल बिकम समथिंग 0.5। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में आप लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, एग्जैक्ट कुछ अप्रोक्सीमेट 0.5 रेंज के बारे में आने वाला है। Now the thing that you have to understand कि तुम्हें कैटायन का रेडियस है, एनायन का रेडियस है, you got the radius ratio value, then that R plus by R minus, ठीक है, ये जो चीज है ये आ रहा है इन द रेंज ऑफ 0.5। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है कि तुम्हारा जो 0.414 से 0.732 का जो रेंज था, वो रेंज के अंदर ये रेडियस रेशियो वैल्यू आ रहा है। सो फॉर दैट रेंज दिस वैल्यू इट फिट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। एक एक करके आते हैं, एक एक करके आते हैं। क्या एक एक करके आएंगे? पहला है Cl माइनस। क्या करेगा? द Cl माइनस विल ऑक्यूपाई क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट, मतलब सीसीपी अरेंजमेंट में क्यूबिक Cl माइनस होगा। इन एफसीसी सिस्टम, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अबाउट Na प्लस। Na प्लस क्या ऑक्यूपाई करेगा? Na प्लस विल ऑक्यूपाई ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जैसे मैंने बोला था, इट विल ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? फॉर NaCl क्रिस्टल, coordination number of the system is 6. That is, one Na plus is going to be surrounded by 6 Cl minus, and one Cl minus is going to be surrounded by 6 Na plus. अभी आते हैं Cl माइनस के अमाउंट के ऊपर। Cl माइनस का क्या अमाउंट है? Cl माइनस ऑक्यूपाई क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो Cl माइनस का अमाउंट है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा अबाउट पर यूनिट सेल, इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। जेड यहाँ पे नहीं लिखूंगा बिकॉज जेड दोनों को कॉम्बाइन करके आता है, तो जो भी है, तो नंबर ऑफ एटम अगर ये एफसीसी अरेंजमेंट में है तो कितना होगा? इसका अरेंजमेंट का नंबर ऑफ एटम कितना होगा? नंबर ऑफ एटम आएगा 4, बिकॉज एफसीसी में कितना होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वो होता है 4। तो Cl माइनस का अमाउंट कितना होगा? 4, करेक्ट। अभी अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द सिस्टम नंबर 5, जहां पे लिखा हुआ है Na प्लस विल ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है नंबर ऑफ एटम जितना होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, करेक्ट। दैट इज n। ये वीडियो भी अभी अगर अब तक नहीं देखा है तो ये भी देख लेना, जहां पे मैंने प्रूफ किया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होगा इफ द नंबर ऑफ एटम इज n, और टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होगा इफ द नंबर ऑफ एटम इज n पर यूनिट सेल। ऑब्वियसली प्रूफ किया था मैंने ये चीज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना है? एफसीसी अरेंजमेंट, इसके अकॉर्डिंगली ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? एफसीसी अरेंजमेंट में नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 4। तो Na प्लस का अमाउंट कितना होगा? Na प्लस का भी अमाउंट होगा 4, करेक्ट। समझ में आया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना कैसा है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट शुड बी n वैल्यू बिकॉज ये एफसीसी अरेंजमेंट में है। तो Na प्लस का अमाउंट और Cl माइनस का अमाउंट रेशियो में कितना आ रहा है? रेशियो में आ रहा है 4:4, जिसको तुम करोगे तो आएगा 1:1 पर यूनिट सेल के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूं। तो मतलब फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा Na1 Cl1 दैट विल बिकम NaCl। पहले अगर तुम्हें यह मालूम नहीं था कि NaCl क्या होने वाला है, Na2Cl2, Na2Cl3, Na2Cl4,
ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोग कि NaCl का फॉर्मूला एग्जैक्ट 1:1 रेशियो में आता है, जहां पे 1 कैटायन इज बिलोंग्स टू 1 एनायन. You have the formula of Na1Cl1 which is something represent NaCl. And obviously last एक तीन चीज जो बचता है वो होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. इट शुड बी दैट इज Z equal to 4. So these are the all information that you will get from this simple radius ratio value, and that is the significance of the radius ratio rule that makes the thing pretty important. I hope you understand all the thing that I am discussing with you about this NaCl system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रेंज यहाँ पे फिट कर रहा है. पहले तुम्हें देखना पड़ेगा जो तुम्हें रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंगली जो तुम्हें कैटायन दिया गया है, एनायन दिया गया है, अगर उसका रेडियस तुम्हें पता है तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, उसके बाद वो कौन सा वाला रेंज में फिट हो रहा है. एंड फ्रॉम दैट रेंज यू कैन गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन बाय हैविंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. ओके जो चीज को हम लोग बारीकी से बार बार कर रहे थे वो एक जगह में पूरा पैकेज में आ गया. ओके एक जगह में पूरा पैकेज में आ रहा है. दैट मेक्स द रेडियस रेशियो रूल अ ह्यूज इंपैक्ट ओवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो NaCl को लेकर जो चीज मैंने बताया था मैंने बता दिया. इसका लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो. उसके बाद हम लोग दूसरे वाले में जाने वाले हैं, दैट इज आवर जिंक ब्लेंड ZnS. ओके तो दूसरा वाले में क्या है, दूसरा वाले में हम लोग का फॉर्म मॉलिक्यूल है जिसका नाम है जिंक ब्लेंड. अभी जिंक ब्लेंड में क्या होता है, जिंक ब्लेंड इज वन ऑफ दोस मॉलिक्यूल विच हैज द रेडियस रेशियो रूल, that is zinc 2 plus bi of Rs2 minus that belongs to in the range of 0.3. okay and when it fits in the 0.3 range जहां पे तुम्हारे पास एक रेंज है about 0.225 to 0.414 which something represent the tetrahedral void space occupation by the cation, जहां पे you have the coordination number of 4 छोटा कैटायन के लिए. तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या आएंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिखने की कोशिश करेंगे. क्या लिखेंगे, नंबर 1 द नंबर 1 थिंग इज द S2 माइनस विल ऑक्यूपाई ऑल द क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इन FCC सिस्टम. ये क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट में आ रहा है. दूसरा जिंक 2 प्लस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये रेंज में फिट कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड स्पेस होगा इसका. सो जिंक 2 प्लस विल ऑक्यूपाई ऑल्टरनेटिव साइट्स ऑफ TD वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक है. 3 होगा ZnS के अकॉर्डिंगली क्या कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, यू हैव द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 दैट इट फिट्स इन दैट रेंज. सो 1 zinc 2 plus will be surrounded by 4 S2 minus and 1 S2 minus will be surrounded by 4 zinc 2 plus. Number 4, the amount of S2 minus present per unit cell format. क्या आ रहा है, the amount of S2 minus present per unit cell format is this, that it is in close pack arrangement in FCC, so it should be 4 because हम लोग को मालूम है that is FCC का जो अरेंजमेंट होता है 6 into half plus 8 into 1/8. इसके अकॉर्डिंगली you have 4, that is the number of atom for S. एटम्स यहाँ पे लिखना थोड़ा गलत होगा, यहाँ पे एनायंस लिखते हैं. ठीक है. उसके बाद हम लोग आएंगे जिंक 2 प्लस के जगह पे.
अभी Zinc2+ क्या बोला गया है, ऑल्टरनेटिव साइड्स ऑफ TD वॉइड्स। इसका मतलब क्या है, Zinc2+ TD वॉइड्स का वैल्यू कितना होता है, ये चीज पहले तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्या होता है TD वॉइड्स का वैल्यू, तुम कौन सा वाला अरेंजमेंट को लेकर बात कर रहे हो, क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट इन FCC। तो TD वॉइड्स का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू होगा 2n। 2n का मतलब क्या है, 2n का मतलब है 2 × 4, क्या आएगा, वैल्यू आएगा 8, करेक्ट। और अगर वैल्यू तुम्हारा आ रहा है 8, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो Zinc2+ है ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ऑक्यूपाई करेगा ऑल्टरनेटिव साइड, मतलब हाफ इंटू 8, पूरा नहीं, ऑल्टरनेटिव। सो कितना आएगा, दिस विल बिकम 4। सो द Zinc2+ अमाउंट फॉर दैट यूनिट सेल फॉर्मेट इज इक्वल टू 4। नंबर 6 में आते हैं। नंबर 6 में क्या आएगा, नंबर 6 में आएगा कि S2- का अमाउंट कितना आ रहा है, 4। Zinc2+ का अमाउंट कितना आ रहा है, 4। रेशियो करेगा तो कितना आएगा, Zinc2+ S2 क्या कितना आएगा, आएगा 4:4। तो क्या आ रहा है, 1:1। फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला तुम्हारा आ रहा है Zinc1 है, S1 है, मतलब आ रहा है ZnS। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सिंपल है। और ये सारे चीजों का जो ओरिजिन है दैट इज कमिंग फ्रॉम द रेडियस रेशियो वैल्यू। ओके, ये सारी चीजों को टेबल डाउन नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही कॉमन क्रिस्टल है जो एग्जाम में आता है। अगर तुम वो क्रिस्टल के बारे में तुम्हारा थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, तो यू कैन इजीली सॉल्व द मैथ, बिकॉज जैसे मैंने बोला, इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू अप्लाई द रेडियस रेशियो रूल, एंड व्हेन यू हैव टू अप्लाई द रेडियस रेशियो रूल, यू हैव टू जज दैट वेदर दिस crystalline solid system has octahedral type of arrangement, that is coordination number 6, the cation will occupy octahedral voids, or the cation will occupy tetrahedral void. Coordination number 4, the number of atom for Zn2+, the number of atom for S2- and so on. बिकॉज वो 3D स्ट्रक्चर जो है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक्सप्लेन करता है, वो दिमाग में रखना बहुत डिफिकल्ट है कि हर टाइम वो बड़ा स्ट्रक्चर लेके तुम चलो। तो तुम्हें इन द शॉर्ट नोट वो स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर में कौन कौन जगह में कौन सा जगह में कौन सा कैटायन था एनायन था, वो याद रखना इतना सारा सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट है। तुम वो स्पेसिफिक सिस्टम के लिए रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंगली ये जो चीजें हैं, ये चीजों को दिमाग में रख के चलो। आई होप यू अंडरस्टैंड। और एक लास्ट है जो लास्ट में आता है सबसे, जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर दैट ZnS सिस्टम, ZnS क्रिस्टलाइन सॉलिड सिस्टम। तो कितना आएगा, ऑब्वियसली द वैल्यू शुड बी Z=4, बिकॉज आ रहा है 4 यहाँ पे, ये FCC अरेंजमेंट में है। Z= कितना आएगा, 4। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम लोग का लास्ट आज का जो है वो है सीजियम क्लोराइड, उसको लेके बात करते हैं। ओके, सो फॉर द सीजियम क्लोराइड, द वैल्यू ऑफ RCesium+ पर RCl-, it is something represented in the range of around 0.9। अगर पीरियोडिक टेबल तुम्हारे हाथ के सामने है तो Cesium+ का रेडियस, आयोनिक रेडियस निकालो, Cl- का आयोनिक रेडियस निकालो, रेशियो करो, द वैल्यू शुड बी अप्रॉक्स बिटवीन 0.9। और अगर 0.9 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा रेंज आ रहा है 0.732 से 1। उसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास क्यूबिक जो वॉइड स्पेस है, दैट क्यूबिक वॉइड स्पेस विल ऑक्यूपाई बाय द कैटायन। सही में, और उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इट शुड बी 8। इसके बारे में हम लोग आते हैं। तो पहला, द सेम थिंग विल बी हियर, द Cl- will occupy all the corners of the cubic प्रीमिटिव भी यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, ठीक है। प्रीमिटिव यूनिट सेल स्ट्रक्चर याद है, आई थिंक प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव वाला, 8 कॉर्नर में 8 एटम याद है। क्यूबिक जो प्रीमिटिव में आता है, नॉन प्रीमिटिव में BCC FCC आता है, प्रीमिटिव वाला पहले वाला जो सिंपल क्यूबिक था, वो सिंपल क्यूबिक प्रीमिटिव यूनिट सेल स्ट्रक्चर ऑल इट विल ऑक्यूपाई।
Okay, and the second thing is the cesium plus will occupy the cubic void. अगर cubic void समझ में नहीं आए तो एक बार बैक कर लो वीडियो को, cubic void कहाँ पे होता है मैंने दिखाया है. 3D यहाँ पे लिख देता हूँ और भी सही आएगा. 3D cubic void space in that lattice. सही में. उसके बाद हम लोग का आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर. अभी एक चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा फॉर द सीजियम क्लोराइड इट शुड बी 8, जैसे मैंने बोला था अबाउट रेडियस रेशियो रूल. उसके अकॉर्डिंगली 1 सीजियम प्लस we'll have 8 Cl minus surrounded to it and 1 Cl minus we have 1 cesium plus surrounded to it. ये तुम बोल सकते हो कि सर आपने तो बताया था कि कैटायन एनायन से घिरा होगा. एनायन कैटायन से कैसे घिरा हुआ है? तुम अगर होल 3D स्ट्रक्चर देखोगे देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एनायन भी कैटायन से घिरा हुआ है, कैटायन भी एनायन से घिरा हुआ है. बिकॉज यहाँ पे हम लोग आइसोलेट एटॉम सिस्टम को लेके बात नहीं कर रहे हैं. हमारे पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटॉम्स है 10 to the power 23 which are in a specific arrangement, and for that specific arrangement we have a beautiful 3D structure. So उसके accordingly cation जैसे anion के साथ होगा, anion cation के साथ भी होगा. And for that you have 1 cesium plus 8 Cl minus 1 Cl minus 8 cesium plus. ठीक है. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद तुम्हारा 4 नंबर पॉइंट आएगा. 4 नंबर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 नंबर पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है Cl माइनस का अमाउंट फॉर पर यूनिट सेल. कितना आएगा? Cl माइनस का अमाउंट. पॉज करके भी कर सकते हो वीडियो, ऐसी बात नहीं कि हर चीज देखना है तुम्हें. कितना आएगा? आएगा 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1. बोलोगे सर आप कैसे 1 बार पकड़ रहे हो? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? विल ऑक्यूपाई ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर. मतलब जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर अगर भूल गए हो तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं एक बार. ओके, दिस वाज द फॉर्मेट. और ये बीच में तुम्हारा जो है वही है हम लोग का क्यूबिक वॉइड. तो इसके अकॉर्डिंगली 8 इंटू 1/8 आएगा बिकॉज दीज आर द Cl माइनस आयंस and this is something represent the void which is occupied by cesium plus. सही में. 5 नंबर पे क्या है? 5 नंबर पे बहुत सिंपल है. 5 नंबर पे सीजियम प्लस के बारे में बोला गया है. सीजियम प्लस का क्या अमाउंट है? सीजियम प्लस है एट द कॉर्नर, तो सॉरी एट द क्यूबिक वॉइड स्पेस. तो क्यूबिक वॉइड स्पेस को, ये तो बीसीसी वाला पोर्शन आया ना कि बीच में एक एटम है, और सीजियम क्लोराइड का बीसीसी स्ट्रक्चर होता है. ओके, बिकॉज अगर तुम ये चीज को अच्छी तरीके से देखो, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सर तो बीसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज बीसीसी का ऐसा ही होता है. तो जहां पे सीजियम प्लस अगर बीच में है तो इसका कितना होगा? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसका होगा 1. वेरी सिंपल, बिकॉज दैट इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ओवर दैट यूनिट सेल. तुम्हें समझ में आ गया होगा. और 6 नंबर पे क्या आएगा? 6 नंबर पे आएगा कि सीजियम प्लस का अमाउंट है 1, Cl माइनस का अमाउंट है 1. तो रेशियो कितना आ रहा है? रेशियो आ रहा है 1:1. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? बहुत सिंपल है. फॉर्मूला है तुम्हारा सीजियम 1 Cl1. क्या आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली? CaCl. ये है तुम्हारा फॉर्मूला फॉर दैट स्पेसिफिक सिस्टम. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. और अगर बोले कि सर इसका Z वैल्यू निकाल के बोलिए, मैं बता देता हूँ. Z वैल्यू क्या आएगा? Z वैल्यू आएगा 2. ये तुम्हें यहाँ से देख के ही पता चल रहा है, बिकॉज BCC हैज अ Z वैल्यू ऑफ 2. सो दीज आर द 3 थिंग्स, 3 यूनिट सेल जिसको लेके मैं बात करने वाला था आफ्टर हैविंग दैट काइंड ऑफ टेबल चार्ट फॉर द रेडियस रेशियो रूल. बिकॉज खाली रेडियस रेशियो रूल पढ़ाने से कुछ नहीं होगा कि मैंने एक टेबल लिखाया, उसमें तुम्हें सब कुछ मैंने बता दिया और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि इससे क्या क्या निकल रहा है और कैसे कैसे हम लोग बताए. तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेक्चर किया हूं जहां पे खाली वो टेबल दे देना मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा. मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं हर एक चीज को कुछ एग्जाम्पल लेके तुम वो रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो वो और इजी होगा तुम्हारे लिए टू अंडरस्टैंड द रेडियस रेशियो रूल. समझ में आ गया आई थिंक. ओके,
So these are the parts which I want to share with you for the radius ratio rule. वो टेबल को अच्छी तरीके से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लगे तो सर बोलो, मैं अच्छी तरीके से एक टेबल बना दूंगा वर्ड में बना के, ओके वर्ड में बना दूंगा मैं, उसमें कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखना वीडियो का अंत तक, यही मेरा बात है। अगर नहीं अंत तक देखोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि रेडियस रेशियो रूल को कैसे अप्लाई करते हैं बाय हैविंग दिस काइंड ऑफ द होल थिंग, जो चीज अभी मैंने तुम्हें दिखाया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो लेक्चर, आई होप समझ में आया सब कुछ। इफ इट्स बेनिफिशियल टू यू, if it's helpful to you, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज B.Chemistry। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्त लोगों के साथ, अपने रूममेट के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, एंड ऑब्वियसली जूनियर्स के साथ भी। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट द रेडियस रेशियो रूल इन द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे वी विल हैव अनदर पार्ट, जहां पे यही चीज को हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्मेट में देखने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल में करूंगा, छोटा वीडियो होगा, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वगैरह का एक्सप्लेनेशन मैं वहां पे देने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी वो भी वीडियो आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पढ़ाई करो, और हम लोग का जो फेसबुक चैनल है B.Chemistry, रेगुलरली वहां पे अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन, साइंटिफिक ब्लॉग्स, वीडियो लेक्चर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है वो चीज़, अगर तुम उसको लाइक करोगे तो आई होप तुम वो एक बार कर दोगे, और सब्सक्राइब बटन को एक बार दबा देना प्लीज़, ठीक है, वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।